हेलो बच्चा पार्टी। मैं हूं आपका अपना हर्षल भैया फ्रॉम आईआईटी जोधपुर और आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। ये हमारी साइंस क्लास 8 की जो नई टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो अगर आप भी मेरी तरह कल को आईआईटी या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। सो व्हाट आई वांट यू इज टू लिसन टू दिस lesson very carefully. Wherever possible you can take down the notes also. Still, if you have any doubts you can ask me in the comments. Okay, let us start with this particular chapter. I will be using English as well as some places Hindi to clear all your doubts. Chaliye, let us start this particular topic. So are you ready? Okay, tell me, what is this? ये क्या है? ये जो गोल सी चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, what is this? Yes, you are right. This is a compass needle. It is a tiny magnet that freely rotates. So it can rotate freely. And its north seeking end. As you can see over here, this compass has two ends. This red color end is called the north seeking end. So it can freely rotate and its north seeking end always points towards the Earth's magnetic north pole. So you have to remember this, that the compass needle is a kind of a small tiny magnet in which it can freely rotate and its north pole is the north pole of this compass needle always points towards the Earth's magnetic north pole. compass क्या होता है? ये एक छोटा सा मैग्नेट होता है, बहुत छोटा सा, टाइनी मतलब बहुत छोटा, छोटा सा एक मैग्नेट होता है जो फ्रीली घूम सकता है, गोल गोल घूम सकता है। और उसका नॉर्थ एंड जो है, मेरे कॉम्पस नीडल का नॉर्थ एंड जनरली रेड कलर से दिखाया जाता है और वो रेड कलर हमेशा नॉर्थ जो पोल है मेरे किसका, कॉम्पस का, वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है? हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। वो कहीं भी घूमेगा पर घूम करके वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ वो रेड वाला पार्ट पॉइंट करके रुक जाएगा। तो इससे हमें डायरेक्शन देखने में बहुत हेल्प मिलती है। समझ में आया? कॉम्पस की मदद से आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बहुत इजीली पता कर सकते हैं। ओके, यस। सो व्हाट विल हैपन if we bring a bar magnet close to a compass needle? If you can see here in this picture, this is a bar magnet. What is this? This is a bar magnet. Okay, it has got two poles. It has got a north pole and a south pole. So my question is, and this is your compass needle. So the question is, what will happen if we bring a bar magnet close to a compass needle? Whenever I am going to bring this bar magnet close to the compass needle, what will you observe? So the answer to this question is, see, magnetic compass shows deflection. Yes, magnetic compass is going to show deflection. It is going to show some movement whenever a bar magnet is brought near it. So the answer to the question is, whenever you are going to bring a bar magnet near a compass needle, the compass needle is going to show deflection. It is going to show movement. So if you ask me why a compass needle will show deflection,
So the answer is because the bar magnet's magnetic field, as you can see here, the bar magnet, ये जो रेड से जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है, these red colored lines are nothing but the magnetic field of this bar magnet, and these yellow lines are the magnetic field of this compass needle, because compass needle is also a bar magnet. So both of them have their own magnetic field, and when they are brought close to each other, then their magnetic fields are going to interact with each other. That means the magnetic field of my compass needle is going to interact with the magnetic field of my bar magnet. And then what happens? There will be a force, magnetic force, which is exerted on to this magnetic compass. So bar magnet exerts a force which causes the needle to show movement or deflection. समझ में आया आपको कि जब एक बार मैग्नेट को कॉम्पस नीडल के पास में लाया जाता है तो कॉम्पस नीडल में एक मूवमेंट या एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है. ठीक है, ये समझ में आया. जैसे ही मैं बार मैग्नेट को कॉम्पस नीडल के पास में लेके आऊंगा, मेरी कॉम्पस नीडल में एक मूवमेंट या डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार मैग्नेट के पास अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है. वैसे ही कॉम्पस भी एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट है, उसके पास भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. और जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो बार मैग्नेट कॉम्पस नीडल पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है और ये मैग्नेटिक कॉम्पस फिर गोल गोल घूमने लग जाता है. इट शोज डिफ्लेक्शन, इट शोज मूवमेंट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. राइट, आगे चलते हैं. ओके, सो इफ एन आयरन पीस इज ब्रॉट नियर अ कॉम्पस. ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक आयरन पीस, सो दिस इज एन आयरन पीस, तो अगर मैं कोई एक आयरन पीस को अपने कॉम्पस नीडल के पास में लेके आता हूं तो क्या कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा? सो इफ एन आयरन पीस is brought near a compass, there will not be any deflection in the compass. कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने क्रॉस यहां पे लगा रखा है. क्यों नहीं होगा डिफ्लेक्शन? बिकॉज देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड. आपने देखा पिछली वाली स्लाइड में कि कॉम्पस नीडल ने डिफ्लेक्शन कब दिखाया था? जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती हैं. किसकी मैग्नेटिक फील्ड? कॉम्पस की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हेन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट, only then there will be a deflection. So here in this case we have magnetic field only with the compass and there is no magnetic field in this iron rod, right? So there will not be any interaction, and if there is no interaction there will not be any deflection in the compass needle. ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो कॉम्पस नीडल में डिफ्लेक्शन तभी होता है जब दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो इंटरैक्ट करेंगी, तभी आपके पास डिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, सो रिमेंबर दैट मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन इन अ कॉम्पस इज ओनली पॉसिबल. डिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होगा? ओनली पॉसिबल इफ इट इज इंटरैक्टिंग विद अनदर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. जैसे यहां पर दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंटरैक्ट करेंगी और आपको कॉम्पस नीडल मूव करती हुई दिखाई देगी, डिफ्लेक्शन करती हुई दिखाई देगी. जबकि दूसरे केस में जहां इस आयरन ऑब्जेक्ट के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सो दिस आयरन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू अप्लाई एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मैग्नेटिक कॉम्पस, सो मैग्नेटिक कॉम्पस इज नॉट गोइंग टू शो एनी डिफ्लेक्शन. क्या ये आपको समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे. एक एक्टिविटी देखते हैं. देयर इज वन एक्टिविटी 4.1. भाई इस एक्टिविटी में क्या दिया है? इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एज यू कैन सी देयर इज अ सेल, राइट?
cell has two terminals, one positive, one negative terminal. There is a wire which we have connected. Okay, we have completed the circuit with the help of a pin, and the wire goes all the way like this and comes back to this cell. And now because the circuit is complete, so the current is going to flow. Current कहाँ से flow करता है? From positive terminal, the current will go all the way to the negative terminal. So will go in a circular fashion. Is this point clear to all of you? Okay. Now, in this activity, what we have done is that we have connected a cell, we have completed the circuit, and then we have passed current. So when the current passes through this wire and this wire is going over this compass needle, so you will find that there will be a deflection in this needle. This is what we have written over here. We found that when current flows through the wire, when a current is flowing through the wire, okay, the compass needle will show deflection. Very strange, but the compass needle is going to show deflection. And when the current stops, suppose if we open this switch over here, okay, we break this circuit, so the current will not flow. So when the current stops flowing, then what happens? The compass needle comes back to its original position. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वायर से करंट पास करते ही कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगती है और करंट ऑफ करते ही नीडल वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट, जैसे कि आपने पहले देखा था. You have seen this, right? In situation number 1, we have got one bar magnet and we have got a compass needle, and both magnetic fields were interacting, so there was a deflection. In the other case also we have seen that there was an iron piece and a magnetic compass, and there the magnetic compass was not showing any deflection because there was no two magnetic fields involved. So we know that magnetic needle will only show deflection when the two magnetic fields are going to interact. So it means that in case of this activity, the current carrying wire also produces magnetic field, because we can only see one magnetic field which is around the magnetic compass, right? We cannot see any magnet nearby. हमें आसपास कोई मैग्नेट भी नहीं दिखाई दिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड मेरे कॉम्पस की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट कर रही हो. हम सिर्फ स्विच ऑन कर रहे थे. तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि करंट पास हो, जैसे ही करंट पास होता है वायर में, वायर के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो आपका नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है. क्या ऐसा होता है? लेट अस सी. So yes, you are absolutely correct. This is what is happening. So when an electric current flows through a wire or a conductor, ये देखिए यहां पर आपके वायर में से एक करंट फ्लो हो रहा है. पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है. ओके, इतना क्लियर है? So when there is a current flowing through the wire or the conductor, it produces a magnetic field around it. तो जब भी करंट फ्लो होता है वायर में तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. एंड व्हेन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड, कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? वायर की मैग्नेटिक फील्ड और मेरे कॉम्पस की मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, when these two magnetic fields interact, then the needle is going to show deflection. आपको समझ में आया?
इज दिस क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन लिटिल बिट मोर डिटेल। इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या था, हमारे पास एक कॉम्पस नीडल है, ठीक है, ये रही हमारी कॉम्पस नीडल। ओके, हमारे पास एक वायर भी है, सो दिस इज वायर। मैं क्या करता हूं, इस वायर को आगे ले जाके ये देखो ऐसे बनाते हैं सेल। ओके, एक से ज्यादा सेल भी आप बना सकते हो जिसे बोलते हैं बैटरी। तो मैंने 3 सेल की एक बैटरी बना दी और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस इज, ये जो लंबी वाली डंडी है दैट इज पॉजिटिव, ये छोटी वाली डंडी है दैट इज नेगेटिव। सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ माय बैटरी। अंडरस्टूड? 3 सेल मिलाकर के बैटरी बनाई। एक सेल एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी से बनता है, प्लस माइनस, दिस इज 1 सेल। सो हियर देयर आर 3 सेल मेक्स अ बैटरी। सो बैटरी में करंट कैसे जा रहा है, ध्यान देना। करंट जैसे मैंने बताया था, इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट फ्लोज लाइक दिस, फ्लोज थ्रू द वायर, फ्लोज थ्रू द वायर एंड कम्स बैक, राइट? सो जैसे ही आपने एक काम करते हैं, यहां पर एक स्विच या की लगा देते हैं। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, there will be a magnetic field produced around the wire. Okay, this red one is the magnetic field. Magnetic field. So there will be a magnetic field produced around the wire. And when there is a magnetic field produced around the wire, okay, there is also one magnetic field which is produced around this compass needle, right? There will be a magnetic field produced around this compass needle. So when this magnetic field and this green colored magnetic field and the red colored magnetic field, ठीक है, असली में तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती, बट एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर मैं बता रहा हूं कि ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड और ये रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब क्या होता है, तब एक फोर्स लगता है। किसके ऊपर? मैग्नेटिक कॉम्पस के ऊपर फोर्स लगता है, उसमें डिफ्लेक्शन या मूवमेंट दिखाई देता है। क्या आपको समझ में आया? क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? तो नीचे चैट में यस लिख देना। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो जब भी एक वायर से करंट पास होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे कॉम्पस नीडल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है और मैग्नेटिक कॉम्पस में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, आपके स्कूल में टीचर क्वेश्चंस भी पूछ सकती है, राइट? तो आपको समझने के साथ साथ क्वेश्चन लिखना भी आना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन what your teacher can ask you, this is your teacher and this is you, she can ask you or he can ask you what is magnetic effect of electric current। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, what is magnetic effect of electric current। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर देखो, आंसर आपको लिखना है कि when electric current flows through a conductor like a wire, जैसा मैंने आपको अभी भी समझाया था कि whenever electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it। वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वो रेड कलर आपको दिखाया था ना, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। इस फिनोमिना को, this phenomena is known as the magnetic effect of electric current। ठीक है, तो ये किस क्वेश्चन का आंसर था? What is magnetic effect of electric current? And this will be your answer for that particular question. Is this clear? क्या भैया मैडम बस एक ही क्वेश्चन पूछेगी? नहीं, मैडम एक और क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ सकती है। What is that question? What happens when a current carrying wire is switched on?
with a compass placed near it. अभी जो हमने एक्टिविटी आपको समझाई थी ना, वो एक्टिविटी को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. एंड दिस कैन बी अ 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन. सो यहां पर हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है जब एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक कॉम्पस रखा जाए और उस वायर में से करंट पास करेंगे तो क्या होता है, और लास्ट में एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. ओके, सो द आंसर इज, वी फाउंड दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर द कॉम्पस नीडल इज गोइंग टू शो डिफ्लेक्शन. राइट, कॉम्पस नीडल में डिफ्लेक्शन होगा. And when the current stops, then this compass comes back to its original position. डायग्राम बनाना है, आप डायग्राम भी बना सकते हैं. तो यहां आपने आंसर दिया कि what happens. Okay, now we are going to explain it कि what is the reason. So what is the reason? That whenever electric current flows through a wire or a conductor, then what happens? It produces a magnetic field around it. यानी वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. कॉम्पस के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है. एंड व्हेन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट, then the needle is going to show deflection because needle experiences a magnetic force. राइट, समझ में आ गया? ये आपने लिख भी लिया. ठीक है, तो यहां से क्या हमको क्या एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं. सो कैन वी से दैट, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म? समझ में आया आपको? देखो हमने क्या किया था, एक वायर थी, एक वायर से हमने ऐसे एक मान लेते की लगा दिया, स्विच लगा दिया और एक बैटरी यहां पे लगा दी. ठीक है, और हमने इसके अंदर से करंट पास किया. राइट, as soon as we passed current through wire, we found that there is a magnetic field produced around the wire. वायर के चारों तरफ ऐसे एक गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. जब हमने स्विच ऑन किया, जैसे उसके अंदर से करंट गया, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. यानी पहले करंट पास किया, करंट पास करते ही उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई. तो क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म? क्या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, ऐसा बोल सकते हैं? यस, हम बोल सकते हैं कि यस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. तो ये जो एक्टिविटी जो आपने की ना, ये एक साइंटिस्ट ने पहले कर रखी थी. सो लेट अस लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट. ये देखो, चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में यहां पर पढ़ते हैं. मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा. बी अ साइंटिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रहा वो साइंटिस्ट का फोटो. यू हैव जस्ट नाउ मेड द सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड. ओके, और ये कब हुआ था? इन 1820, 1820 में. 1820 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑयरस्टेड. और इन साहब ने क्या किया, ये उनकी फोटो है, देख लीजिए यहां पर. क्या किया इन साहब ने? दैट इज द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड. सो ही वाज द फर्स्ट वन. Hans Christian Ørsted was the first one to do this activity and to tell this whole world that there is a relation between electricity and magnetism. जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था, there is a relation, that is electricity produces magnetism. Electricity produces magnetism. ये Hans Christian Ørsted ने 1820 में ही बता दिया था. He was a professor at the University of Denmark. वो डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे. इट इज सेड दैट वंस while giving a demonstration he noticed that whenever an electrical circuit was closed or opened, the needle of the magnetic compass lying nearby deflected. तो ऐसा
कहा जाता है कि जब जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जब भी वो किसी वायर से करंट पास करते थे तो उसके पास में रखी हुई नीडल, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता था। यस यस यस, ये जो पीछे हमने एक्टिविटी की, एग्जैक्टली वही एक्टिविटी। देन ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन, और उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया कि अरे मेरे पास तो, मेरे जेब में तो कोई मैग्नेटिक वो है ही नहीं, बार मैग्नेट है ही नहीं, ये कॉम्पस अपने आप हिल कैसे रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर अच्छे से वर्क किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और एकदम जब वो सर्टेन हो गए तब उन्होंने बताया सबको कि जब जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं, दैट दिस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूसिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट जब आप कोई वायर स्विच ऑन करते हैं, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब मेरे कॉम्पस की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है तो मेरे मैग्नेटिक कॉम्पस में एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग, उसने अपनी फाइंडिंग्स को कुछ किताबों में लिख करके पब्लिश कर दिया। दिस लेड टू अदर साइंटिस्ट्स रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स टू चेक इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट्स। दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा, बोला कि क्या पता वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड। एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया एंड उन्होंने भी सेम रिजल्ट्स मिले उनको भी, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सबने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कनेक्शन है, इसको मान लिया। कौन था ये साइंटिस्ट? हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड। इज दिस क्लियर? ओके बच्चा पार्टी, तो आज के लेसन 1 में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मैं आपसे मिलता हूं लेसन 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।